वनुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वबिल वालिदैनि इहसाना। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वबल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। सुम्मा रिदा अन अबी बकर मअन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमीम। बंदाए परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी दोस्त दारे चारियारम ताबे औलादे अली। मज़हबे हनफिय्या दारम मिल्लते हज़रत खलील। खाक पाए गौसे आज़म से निसाया हर वली। गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हरे नूरे खुदा नाकि सौरा पीर कामिल कामिला रहनुमा। हम्दो सना के बाद मुअज़्ज़िज़ सामीन कराम, ज़वील इख्तिशाम, बुजुर्गों, दोस्तों, मोहतरम भाइयों और बहनों, today inshallah ta'ala we are going to discuss about respect of our elderly people, and then in second part of this hadith regarding the tarbiyat of our children or upbringing of our children. अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आज की गुफ्तगू को कबूल फरमाए। मैंने जो आपके सामने आयत पढ़ी, अल्लाह ताला फरमाता है वबिल वालिदैनि इहसाना, अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। Try to show respect towards your parents or respect to your parents. Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned in the Quran on several places about the respect of parents. But today specifically we are going to talk about elderly people, जो हमारे मुसलमानों के बुजुर्ग होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, elder people, we are going to discuss about their respect. हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक बड़ी प्यारी हदीस, हज़ूर ने फरमाया इन्ना मिन इजलालिल्लाहि इकराम दिश्शैबतिल मुस्लिम। हज़ूर ने फरमाया कि उम्र रसीदा मुसलमान की इज्जत और तकरीम करो तो गोया ये अल्लाह की ताज़ीम और तकरीम करना है। How beautiful hadith, how beautiful narration, and how beautiful kalam of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. The Prophet alayhi salatu wasalam is saying that if you are respecting any Muslim who is elder than you, and if you are giving him regard, if you are respecting him, this is same as you are respecting Allah subhanahu wa ta'ala. कितनी प्यारी, कितनी खूबसूरत हदीस है। How beautiful hadith is this, and how beautiful lesson which Prophet alayhi salatu wasalam is telling us and telling us to do, that if you are respecting any elderly person, it is same as you are respecting Allah subhanahu wa ta'ala. और फिर अगली हदीस तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है और पिछली रिवायत सुनन अबू दाऊद की है। तिरमिज़ी शरीफ के अंदर ये रिवायत नकल की गई है, हज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया लैसा मिन्ना मन लम यरहम सगीरना व युबक्किर कबीरना। हज़ूर ने फरमाया वो हम में से नहीं। आज क्योंकि बच्चे भी हैं, छुट्टियां इनको, तो कोशिश करूंगा कि मैं थोड़ा इंग्लिश में थोड़ा ज्यादा बात करूं। तो हज़ूर ने फरमाया कि हम में से वो शख्स नहीं जो छोटों पर शफकत ना करे और बड़ों का अदब ना करे।
Hazur alayhi salatu wasalam is mentioning in this riwayat, the Prophet alayhi salatu wasalam said that person is not from us. That it means Prophet alayhi salatu wasalam is saying that which type of Muslim he is. Who? The person who doesn't respect elders and is not kind towards children. So it means this is the sign of Muslim, that if someone is saying that he is a perfect Muslim, he should respect elders. And on the other part of this hadith, in the other part of hadith, Prophet alayhi salatu wasalam said, to be perfect Muslim, you should be kind towards children. So aaj hum dekhen, we all know whatever is going on in our suburbs and surroundings, how much respect we are giving to our elders, and how much good we are with our even younger brothers, cousins, sisters. So Prophet alayhi salatu wasalam said, it is really important to be perfect Muslim, to be good with your children, and to give respect to your elders. Allah Ta'ala हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और फिर दो जुमलों में हजूर अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी खूबसूरत बात फरमाई। आपने फरमाया कब्बिरिल कुबरा, बड़ों के मर्तबे का ख्याल करो, उनकी इज्जत का ख्याल करो। कब्बिरिल कुबरा, try to respect your elders. फिर इसी तरह अब ये बड़ी प्यारी हदीस है, हम अक्सर ये देखते हैं, we often see few people, especially from youngsters, mashallah, it's really good, we see them that they do so much regard of their elderly people. For example, if they're coming in a room, they will stand up and they will try to give them his seat or her seat, their seat, they try to give them their seats. And for example, if they're going outside from room, wo joote pesh karte hain, and they always try to say salam first to elders. Mashallah, these are the different things which they do. So now listen the hadith in which Prophet alayhi salatu wasalam is talking about the reward of such children or such youngsters, that Prophet alayhi salatu wasalam said, आपने फरमाया कि अगर कोई अपनी जवानी में, अब पहले उर्दू में सुनने, फरमाया कि अगर कोई जवानी में किसी बूढ़े का अदब करता हो, तो फरमाया कि जब वो बूढ़ा होगा, अल्लाह ताला उसके लिए एक जवान अपॉइंट कर देगा जो उसकी रिस्पेक्ट किया करेगा। Subhanallah. Prophet alayhi salatu wasalam said, if you are young and you are respecting an elderly person, any buzurg, when you will be buzurg, Allah subhanahu wa ta'ala will appoint a youngster or young boy to respect you. This is the reward which you will get. ये आपको इज्जत और तकरीम मिलेगी कि जब आप बूढ़े हो जाएंगे, अल्लाह ताला आपके लिए एक ऐसा बंदा पैदा कर देगा, एक बंदे के ज़हन में डाल देगा, यार इसका अदब किया करो। तो अल्लाह ताला हम सबको अपने बड़ों का अदब करने की तौफीक अता फरमाए। अब this point is also really important. The Prophet alayhi salatu wasalam said, according to Imam Hakim al-Mustadrak, Hazur alayhi salatu wasalam ने फरमाया, बर्रु आबाअकुम तबर्रुकुम अबनाउकुम। हजूर ने फरमाया अपने वालिदैन के साथ अच्छा बर्ताव करो, जो तुम्हारे बच्चे होंगे वो तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव करेंगे। हजूर अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम said that if you are good with your parents, if you are, this is a very important hadith, a great lesson, and Allah subhanahu wa ta'ala is talking about a great reward which you will get if you will do this amal, or if you will do this action. The Prophet ﷺ said that if you are respecting your parents today, when tomorrow, when the day will come that you will have your children, they will respect you because of this amal. Subhanallah. And if you want to understand the vice versa of this hadith, so it means if you are disrespecting your parents, the time will come when you will have children, they will disrespect you. मगर हम इन चीजों को समझते नहीं हैं, हम इस समझने की कोशिश ही नहीं करते। ये सिर्फ छोटे बच्चों के लिए बात नहीं है, बड़ों के लिए भी तो है ये बात। हम वालिदैन का इज्जत नहीं करते आज, और हम ये सोचते हैं कि यार मेरा बच्चा तो ख्वाब देखते, काश मेरा बच्चा मेरा बड़ा अदब करे, काश मेरा बच्चा मेरी हमेशा बात माने। Today we are not listening our parents. So how it will be possible that your children will respect you? It's out of question, it's not possible. So to get respect from your children, today you need to respect your father, your parents, your father, your mother. Allah Ta'ala हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अब बड़ी प्यारी हदीस है, इतनी खूबसूरत रिवायत है कि आपका दिल खुश हो जाए।
हज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया वक़्तिल कबीरा वरहमिस सगीर तुराफ़िक़नी फिल जन्नह। सुभान अल्लाह, बड़ी प्यारी हदीस है। अब हम मुसलमान अक्सर ये सोचते हैं, we often think this, that if Allah will give us chance, and mashallah, how much lucky we will be if we will get the company of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in heaven or paradise. अक्सर लोगों का ये ख्याल होता है काश हमें हजूर की संगत मिल जाए जन्नत में। हम ये सोचते हैं ना, हम दुआ करते हैं, बुजुर्ग बड़े बड़े दुआ मशाइख दुआ देते हैं, जा या फिर हजूर की संगत अता हो जाए जन्नत में। अब मैं आपको फार्मूला दे रहा हूँ। हज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आपने फरमाया वक़्तिल कबीरा वरहमिस सगीर तुराफ़िक़नी फिल जन्नह, that if you will respect your elderly people and if you will be good and kind towards your children, Allah subhanahu wa ta'ala will give you a chance of the company of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in heaven. अब इतनी प्यारी हदीस, इस पर कुर्बान होने का दिल करता है कि हमें हजूर की संगत मिल जाएगी, जन्नत में हम हजूर का साथ हमें मिल जाएगा। लेकिन इसके लिए जरूरी यह है कि पहले बड़ों का अदब किया जाए। अगर बड़ा पहले बाहर जा रहा है उसको पहले मस्जिद से बाहर जाने दो, अगर वो मस्जिद में एंटर हो रहा है उसको पहले एंटर होने दो। अगर आप शूर एक्सप्रेस, ये मुख्तलिफ चीजें ना, आप शूर एक्सप्रेस के पास गए तो बुजुर्ग देखा, आपने एल्डरली पर्सन देखा है, ट्राई टू गिव हिम चांस टू डू फर्स्ट। इसी तरह खाने का टाइम आया, अपने बड़ों को पहल करने दें। कुछ खरीदने का वक्त है, अपने बड़ों को पहल करने दें। आप कहीं पर जनरल स्टोर पर गए हैं, बैंक में गए हैं, कहीं और पर गए हैं, जहां पर आप बस स्टेशन पे खड़े हैं, बस पे बैठने लगे हैं या बस में बैठे हुए हैं, ट्रेन में बैठे हुए हैं, बड़ों को सीख दें। हमने तो अपने मुल्क में ये देखा है, मगर यहाँ पर ये चीज बच्चों को सिखानी पड़ेगी। अब होता ये है कि हम माशाल्लाह चंगे हट्टे कट्टे तगड़े जवान, जब हम बस स्टेशन में जाते हैं या बस में बैठते हैं, ट्रेन में सवार होते हैं, कहीं स्टोर पर जाते हैं, हम खुद बड़ों का रिगार्ड करते नहीं। We ourselves are not giving respect to our elders. So how it is possible that our children, they will respect us, they will give us respect? It's out of question, it's not possible. So उनके सामने पहले आप उनको प्रैक्टिकल करके दिखाएं। मैं अक्सर ये कहता हूं, जो अपने माँ बाप को पूछते नहीं है ना, याद रखें जब वो बूढ़े होंगे उनके बच्चे उनको पूछेंगे नहीं। बहुत सारी ऐसे बातें इमाम के दिल में बड़े राज होते हैं। बेचारी माए बहनें फोन करती हैं, वो रोती हैं फोनों पर, उनका शौहर दुनिया से चला गया या कोई ऐसा मामला हो, बीमार हो गए, बच्चे उनको पूछते नहीं है, वो रोती हैं आगे। हमारा दिल भी बड़ा नरम हो जाता है, हमारे आंखों में बाद आंसू आ जाते हैं, यार हम मुसलमानों को क्या हो गया है? What happened? Why we are not respecting our parents? This time gonna come upon you as well. The time will come, you will be old, you will have need of the company of your children, but they will not give you this company because you yourself was not giving company to your parents. I was very busy. We would say to our parents, I'm really tired because I did 8-hour shift, 12-hour shift, या जिन्ने घंटे दी shift. So we give this reply to our parents. वो बेचारे parents ने चुप हो जाते हैं. So if you are not respecting your parents, if you are not giving time to your parents today, tomorrow your children, because they are watching so much closely everything but you are doing with your parents. So when the time will come upon you, they are not going to give you time. Because आपने उनके सामने प्रैक्टिकली किया ही नहीं। अगर बच्चा देखेगा, ये बड़ों के लिए भी बातें हैं, बच्चा देखेगा कि बाप मेरा हर वक्त माँ के पास बैठा रहता है, बीवी के अपने हकूक हैं, वो सारे मामले चले जा रखे, माँ के हकूक पूरे करता है। जब बच्चा देखेगा मेरा बाप अपने बाप की बड़ी रिस्पेक्ट करता है, कभी भी बाप के सामने ऊंचा नहीं बोला। आज हम देखें ना हमारे बच्चे कैसे हैं, स्पेशली I'm talking to the youngsters, mashallah, a lot of youngsters here. Just look at your behavior. When you're talking to your parents, which way you're talking to them? In disrespectful way. So if you are disrespecting your parents today in front of your children, then your children will give same type of respect to you when you will be old. So Allah Ta'ala हम सबको ये बातें समझने की तौफीक अता फरमाए. Now the hadith which I mentioned before this conversation, Prophet ﷺ said, if you want my company in Jannah, try to give respect to your parents and try to be good with your children. तो ये हजूर अलैहिस्सलाम की कंपनी हासिल करने का, हजूर अलैहिस्सलाम की संगत हासिल करने का बड़ा आसान तरीका है।
अल्लाह ताला हम सबको इबादत समझने की तौफीक अता फरमाए। फिर अब मैंने एक बड़ी प्यारी हदीस पढ़ी। वैसे तो हजूर की सारी गल्लें चंगियां ने, दिल करता बंदा बस हजूर की हदीस पढ़ता जाए और काश वक्त वहां पे ठहर जाए, आगे पीछे ना जाए। हजूर कितनी प्यारी बातें हैं। अब ये अगली बात भी बड़ी खूबसूरत है कि हजूर अलैहिस्सलाम ने हमें सबक दिया रिश्तेदारों के साथ उसने सलूक का। यह भी तरबियत के अंदर ही आता है, बड़ों के अदब के अंदर आता है। अब हजूर अलैहिस्सलाम ने एक फार्मूला दे दिया। एक तो है ना कि वालिदैन के अदब और दुआओं से जिंदगी लंबी हो जाती है। मैंने एक हदीस के पढ़ी थी that if you are respecting your parents because of this amal you will have a long life. This is the reward which you will get. Now another narration which I read today, Prophet अलैहिस्सलाम हजूर ने फरमाया कि अगर कोई बंदा अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करे। अब देखिए हम होता ये है कि चौधरी साहब अमीर हो गए, बड़े यूके में आके माशाल्लाह बड़ी गाड़ियां आ गई, बड़ा पैसा आ गया, 2-2, 3-3 जनाब जो है वो बैंक अकाउंट से 10-10, 12-12 हज़ार अल्लाह करे सबके हुए से। फकीर तो तेल कोई किसी अमीरों माशाल्लाह। तो यहाँ पर आज पैसा बड़ा आ गया, इतना पैसा आया, हफ्ते का 500-600 पाउंड आ रहा है। रिश्तेदारों को भूल गए, रिश्तेदारों को भूल गए। So if today you have so much money, often it happens that we often forget our relatives. And sometimes we have this fear that maybe they will ask for any help. चलो साडा चाचे दा पुत्र, हमारा खाला का बेटा, हमारी भाई बहन अमीर हो गए, थोड़े में हेल्प हो जाए। अपने रिश्तेदारों को देना ये भी सदका है। आप ज़कात के मसाइल पढ़ के देखें कि सबसे ज्यादा रिवॉर्ड उस वक्त मिलता है कि अगर आप सदकात और खैरात अपने रिश्तेदारों पर करें। मगर हम कहते हैं कि वो थोड़ा सौखा ना हो जाए अगर हमने उसको कुछ पैसे दे दिए। अब सुने, हजूर अलैहिस्सलाम ने ये फार्मूला दे दिया। हजूर ने फरमाया कि अगर तुम रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करोगे, if you will be kind and good with your relatives, towards your relatives, now listen the reward. Prophet ﷺ said, Allah subhanahu wa ta'ala will give barakat in your rizq. And then Allah subhanahu wa ta'ala will give barakat in your mal, in your wealth. तुम और rich हो जाओगे। We think if you will give something to our relatives, we will be poor then, हमारा account नीचे हो जाएगा। But hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tells that if you are spending money upon your relatives, Allah subhanahu wa ta'ala will give barakat in your mal. और फिर अगला हजूर ने फरमाया, Allah subhanahu wa ta'ala, because of the good amal which you are doing with your relatives, because of this amal, Allah subhanahu wa ta'ala will give barakat in your life. आपकी जिंदगी भी लंबी हो गई, आपका माल भी बढ़ गया, आपके इतना अच्छा सब कुछ मिल रहा है। मगर इसके लिए करना क्या, कंडीशन ये है अपने रिलेटिव्स के साथ अच्छा होना पड़ेगा। सॉरी टू से हमें अक्सर ये बातें मिलती हैं, भाई आपस में राजी नहीं, भाभियों के आपस में मामला चल रहे हैं, हम खाला खाले चाचा चाची ये फूफी, ये तो बड़े दूर की बात है, हम कभी उनसे बात करना पसंद नहीं करते। और इसके अंदर कहीं ना कहीं रोल हमारे अपने पेरेंट्स का भी है। They don't want us to talk to them. ऐसा नहीं होना चाहिए। आप देखें घरों के अंदर आज मुसीबतें आई हुई हैं, और फिर आप देखें तो अब बड़ा खूबसूरत कॉन्सेप्ट होता था कंबाइंड फैमिलीज का। यहाँ पर तो ये मामला नजर ही नहीं आता। उसके अंदर भी बरकत है, उसके अंदर भी बरकत है। तो हजूर ने फरमाया, आपने फरमाया अगर लंबी जिंदगी चाहिए, ज्यादा माल चाहिए, ज्यादा इज्जत चाहिए, तो अपने रिलेटिव्स के साथ तुम अच्छे हो जाओ। अब आखिरी हदीस, क्योंकि वक्त हो गया। अब ये सारी तरबियत हकूक के अदब के अंदर ये भी एक पार्ट आता है, रिलेटिव पॉइंट है, रेलिवेंट पॉइंट है। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं अक्सर ये मेंशन करता रहता हूँ, अब क्योंकि बच्चों ने भी याद आना था, so I tried my best to give message to everyone as per their age group। अब हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये पेरेंट्स के लिए, स्पेसिफिकली फॉर पेरेंट्स। आज क्या होता है कि हम अपने बच्चों को अच्छे अच्छे तोहफे दे देते हैं। We often give them really expensive presents or gifts. प्ले स्टेशन बड़े बड़े महंगे हैं, मोबाइल अच्छे ले देते हैं। बच्चा बड़ा है, यूनिवर्सिटी लेवल का है, कॉलेज लेवल का है, अगर ड्राइविंग कर सकता है तो हम उनको कहते हैं मैं अच्छी गाड़ी लेकर दे दूंगा। Now listen the teaching of Rasulullah. What Prophet ﷺ is saying here. Prophet ﷺ said the best gift for your children is to give them good upbringing, to give them good tarbiyah. Okay, if today you're buying for them iPhone Pro X, I don't know which is the latest model,
So if you are giving them really good smartphone, giving latest model of PlayStation or any good car, any other thing, but listen, the teaching of Rasulullah, Prophet ﷺ is telling us and informing us about that the best gift for your children are not these things. The best gift for your children is good bringing up, good upbringing. उसको कुछ अच्छी तरबियत दो. तुम दुनिया से चले गए, अच्छी तरबियत नहीं की थी, उसने कभी कुरान ही नहीं पढ़ा तुम्हारे लिए, कब्र में क्या हालत होगी तुम्हारी. उसको प्ले स्टेशन पता नहीं क्या का लेके दिया थे, वो कार्टून मारता रहे एक दूसरे ने, उन्हें पता ही कोई माँ प्यो ने दुआ की में कर दी. तुम्हारे गिफ्ट तो यही जन्म में गए ना सारे. अपने बच्चों को कुछ अच्छा अपब्रिंगिंग दें, अच्छी तरबियत दें. अल्लाह ताला हम सब इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए. व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन.